بلوچستان کا جو حالیہ بحران ہے اس کا ایک سیاسی اور قانونی پہلو بھی ہے، اور اس بحران کے اوپر علی احمد پور صاحب سے بہتر کون ہو سکتا تھا جن سے ہم بات کریں، کیونکہ آپ نے جوڈیشری کی بحالی کی جو تحریک چلائی اور اس کے بعد بھی کرپشن کی سے آزاد پاکستان سے لے کے اور کئی بڑی تحریکوں کی ریفارمز کا حصہ رہے، تو بلا تاخیر ہم ایک چھوٹے سے سوال سے ابتدا کرتے ہیں کہ بلوچستان نے پاکستان کو دو چیف جسٹس دیے، ان دونوں چیف جسٹس کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کیا خدمات تھی؟ آپ جو کہہ رہے ہیں مراد آپ کی ایک چودھری افتخار ایک جی فائدہ سر، قاضی فائدہ سر، یہاں آپ اگر سارا کوئٹہ اور بلوچستان میں اگر آپ پھریں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں یہاں کی وکلا لیگل فریٹرنیٹی اور ہمارے جو عام پبلک ہے وہ کوئی اچھی رائے نہیں، اور اب لوگ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ قاضی فیض ایک زمانے میں بالکل یہاں پہ اپنے پاپولرٹی کے بیس پہ پیک پہ تھے، مگر اب وہ صورتحال ہے کہ لنڈن جیسے شہر میں جہاں وہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں، ایجوکیشن کو سارا انہوں نے وہاں سے وہ کیا ہے اور اچھی خاصی وہاں پر ان کی ایک سب کچھ تعلقات ہے، اس شہر میں بھی اب وہ اس طریقے سے فریلی نہیں پھر سکتے۔ اسی طریقے سے چودھری افتخار صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنی شہرت اور جتنی عزت و احترام ان کو ملی کسی شخص کے حصے میں نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں جو ہر سال جو اکتوبر میں ہوتے ہیں ان میں وہ ووٹ ڈالنے بھی کاسٹ کرنے نہیں آتے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تو اس وجہ سے دونوں کے بارے میں، لیکن دونوں کے ساتھ آپ کا جب شروع میں بڑا اچھا تعلق رہا، اور ہمیں لگتا ہی ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ امید پرست ہیں، جو بھی آپ کو دکھائے کہ وہ صحیح راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے اس کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں میری اس لحاظ سے میں بہت ہی آپٹیمسٹک سوچ کا ہوں، کبھی زندگی میں نیگیٹو یا اس میں میں نہیں کہوں کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، یہ برا، ہمیشہ میں نے پہلو جو ہے وہ اچھا پہلو، ہمیشہ مطلب میں یہ کہتا رہا ہوں کہ گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے، اس حوالے سے چودھری افتخار کے حوالے سے واقعی میں حقیقت آج بھی میں کہتا ہوں ایک ذہن میں ایک بات تھی کہ نہیں، اس شخص کے آنے سے سارا سسٹم جو آج تک بالکل رانگ ٹریک پہ جاتا رہا بالکل اس میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ جو بالکل لوگوں کو انصاف ملے گا، مگر وہی میں بھی وہی شخص ہوں کہ ان کے اس موومنٹ کے کامیاب ہونے کے اور اس کے ریسٹور ان کی وہ اپنے پوسٹ پہ اپنی جگہ پہ ریسٹور ہوئے، سب سے پہلا آدمی تھا جو میں نے کہا کچھ نہیں بدلا، ابھی پھر اور بیٹھے۔ اس لحاظ سے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی اس جب ریفرنس ان کے خلاف آیا، میں اور دوسرے ہمارے جتنے وکلا ساتھی تھے ہم نے بڑی جدوجہد کی، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی وکلا کی اسٹرگل کی وجہ سے وہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس واپس ہوا، اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو اچھی ہے کہ آپ اچھی امید لوگوں سے رکھیں، اب اگر حالات ان کی اپنی وجہ سے خراب ہوں تو اس پہ تو ابھی جو ہماری عدلیہ ہے اس سے ایک عام آدمی کو کتنی امید باقی رہے گی؟ نہیں، 26 امینڈمنٹ جو ہے اس کے بعد تو میں یہ اوپنلی کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں کہ اس وقت ہر ضلع میں سب ڈسٹرکٹ کی سب سے بڑی جو عدالت ہوتی ہے وہ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں اور عموماً میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ضلع میں یا پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے اور اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ امید ہے کہ نہیں اس کورٹ میں جس میں ہم پیش ہو رہے ہیں اس میں انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے، اسی امید پہ ہوتے ہیں، مگر ویئر ایز کمپیئر ٹو دیٹ
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब लोगों की बिल्कुल उम्मीदें टूट गई हैं, और कोई जो है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के उसमें कोई लोग न जाना पसंद करते हैं, और न उस हवाले से उनको कोई उम्मीद है कि यहाँ से लोगों को कोई दाद रसी मिलेगी, कोई जुल्म के खिलाफ, कोई बेइंसाफी के खिलाफ उनको कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। तो चलिए हम बलूचिस्तान के ऊपर आते हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? बलूचिस्तान जिसमें आज न सिर्फ हम समझते हैं बल्कि हकीकतन एक बहुत ही पावरफुल एक मूवमेंट मौजूद है। उसको आप मूवमेंट का नाम दे दें, इंसर्जेंसी का नाम दे दें, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो भी आप कहें, वो अपने पीक पे है। सारी बलूचिस्तान की हिस्ट्री, मैं बलूचिस्तान का बाशिंदा हूँ और वैसे भी हिस्ट्री से मेरा एक बड़ा शौक है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, सारी बलूचिस्तान की हिस्ट्री में फ्रॉम द बिगनिंग टू अप टू डेट आज की तारीख में कभी भी बलूचिस्तान के लोग किसी एक लीडरशिप के पीछे इस तरह यूनाइट नहीं हुए जिस तरह आज है। डॉक्टर मारिंग बलोच और उसके जो कोलीग्स हैं, ये वाहिद वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने सारे बलूचिस्तान को अपने उस सारे बलूचिस्तान को उस अपनी सोच के हवाले से उन्होंने जो है मुतहद किया। पहले कभी नहीं हुआ। बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर के लिहाज से, स्ट्रगल के लिहाज से, सोच और नज़रिए के लिहाज से बहुत पावरफुल और बहुत मंजूर शख्सियात लीडरशिप गुजरी हैं, मगर कोई लीडरशिप ये क्लेम नहीं कर सकता था, न किसी ने कहा कि वो सारे बलूचिस्तान के लोगों की हमदर्दी हैं या उनकी सोच को वो उनकी मतलब नुमाइंदगी कर सकते। डॉक्टर मारिंग बलोच ये कह सकते। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सारी की सारी खराबी जो है वो जो हमारे पावरफुल मुक़्तदर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, जनरल्स है, ये उनकी गलत सोच और उनकी गलत जो हिकमत है, स्ट्रेटजी है, उनकी हवाले से बलूचिस्तान में कभी भी ये सोच मौजूद नहीं थी जो आज मौजूद है। मैं बलूचिस्तान में डायरेक्टली, मेरा ख्याल में 1965 में मैं खुद बलूचिस्तान के इस मूवमेंट के हवाले से गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला मैं आप कह सकते हैं कि मैं प्रिजनर कह सकता हूँ, जिसमें 1965 में मत जेल में मैं सिंध मसरूम जेल में मैंने 6 माह गुजारे। मगर उस वक्त मूवमेंट ये नहीं थी। मूवमेंट ये थी कि 1 यूनिट, मूवमेंट ये थी कि ये वो मूवमेंट जो वो बलूचिस्तान की सूरत हाल जो आज स्ट्रगल है, वो ये थी कि 1 यूनिट तोड़ने के नाले से इसने स्टार्ट किया। आज खुलम खुला जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते। तो इसमें सारी की सारी जो, लेकिन मारंग की जो तहरीक है वो तो बुनियादी तो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक राइट्स की एक मूवमेंट है, उसका कोई सियासी एजेंडा तो नहीं कतई नहीं है। तो मिसिंग पर्सन्स ही जितना टची जो इस वक्त पॉलिटिकल क्वेश्चंस है वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से मैंने अपनी स्पीचेस में कई दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को कहा, आर्मी को समझाया, जनरल को समझाया कि देखो तुम लोग गलत कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे सीरियस और बहुत पिंचिंग अगर कोई इशू है वो मिसिंग पर्सन का, और ये जिसको ये डॉक्टर मारिंग लेकर और इसके पुलिस लेकर आगे बढ़ रहा है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज के साथ है और आज आपके सामने है। क्योंकि ये तहरीक ही कानून की बालादस्ती की है मिसिंग पर्सन्स, तो क्या अदालतों ने, आला अदालतों ने किरदार अदा किया? इफ्तिखार चौधरी के दौर में शायद जो है उनके दौर में का सबूत लिया, उसके बाद कोई बहुत इफेक्टिव रोल सामने नहीं आया। जस्टिस इकबाल और जावेद इकबाल कमीशन के सरबराह में, लेकिन उनकी स्टेटमेंट भी जो खासी मायूस करने वाली रही। देखिए राना साहब, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अहमियत उस चीज़ की होती है जिसको आम पब्लिक या लोग जो है उसको कोई अहमियत दें या उस पर कोई उम्मीदें अपनी फिक्स करें, उम्मीदों क्या वो इस वक्त ये कमीशन वगैरह कोई आदमी इनको कोई ताल्लुक ही नहीं रखता, कोई इनसे एक उम्मीद की नहीं रखता। इसी वाले से चौधरी इफ्तिखार से बहुत इख्तलाफात के बावजूद, या इस क्वेटा में मैंने देखा है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उसने जर्नलिस्ट को बुलाया, DGI, SI, IMI सबको बुलाया था, सारे आर्मी के लोग यहाँ बैठे होते थे और चौधरी इफ्तिखार उस मामले में जो
مگر وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 اس میں جتنی بھی ان کی طرف سے کوشش تھی انہوں نے کی مگر اس کا رزلٹ نہیں نکلا. تو اس وجہ سے سب سے ٹچی اور پنچنگ اگر کوئی صورت حال ہے وہ جو بات ہے جو لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے, لوگوں میں ایک طاقت اور ایک انرجی ان میں ڈیولپ کرتا ہے, وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ٹچی. دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں خود ایم آئی ایم آئی کے میں اس میں سیل میں رہا ہوں, ان کے ساتھ اچھے کافی دن میں نے گزارے. وہ تو ایک بہت ہی اسٹرانگ نروس کا اگر کوئی آدمی ہو وہاں پر اس ایم آئی یا آئی ایس آئی کے جو بنائے ہوئے ٹارچر سیل ہے یا جو بھی ہے اس میں میرا خیال سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آدمی اس کو ریزسٹ کر سکے. اب چھوٹے لڑکوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, کوئی باپ ہے کوئی بھائی ہے کوئی کیا یہ سب سے پہلے یہ لوگوں کو لے جا کے بالکل ان کو ڈس اپیئر کر دینا. یہ ساوک شہنشاہ ایران کے زمانے میں سب سے پہلی جو بہت ہی بدنام زمانہ جو ہے ان کی اگر وہ تھی انٹیلیجنس, یہ ان کی سوچ تھی. کیا وہ شہنشاہ ایران کو کیا ملا؟ آج وہی شہنشاہ ایران ہے کہ اس کا نام ایران میں نام لینا جو ہے مشکلات میں سے ایک مشکل بات ہے. تو یہ جب شہنشاہ ایران کے سابق کو یہ اس سوچ نے, اس حکمت عملی نے, اس جبر و ظلم نے کچھ نہیں دیا تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو, یہاں کے آئی ایس آئی, یہاں کے ایم آئی کو کیا دے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ محرم کی تحریک کے پیچھے ناکامی ہے قوم پرست جماعتوں کی بھی, نظام کی بھی, عدلیہ کی بھی, سوسائٹی کی بھی. تو وہ جو گیپ بنا تو اس کی وجہ سے محرم آ گیا. نہیں, نظام کی ناکامی آپ کہہ سکتے ہیں فیڈرلزم پہ یا اس ملک کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی. اس کی ناکامی کو آپ کہہ سکتے ہیں. یا جو بلوچستان میں ایک بہت شدید قسم کی جو محرومی ہے اکنامیکل اور پولیٹیکل ہر لحاظ سے, یہاں صرف یہ نہیں ہے, میں نے خود لوگوں یہاں بلوچستان میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بہت بڑی جو کامیابی اکنامیکل آپ پروگرس کی بات کر سکتے ہیں صرف اور صرف کہ ان کے پیروں میں ابھی کوئی چپل نام کی کوئی چیز ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اکنامیکل آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں, بلوچستان کے معاشرے میں بلوچوں کے حوالے سے کوئی پروگرس ہے. صرف یہ ہے کہ ان کے پیروں میں جوتے آ گئے ہیں بس, اور نہیں. تو اکنامیکل ایک بہت شدید قسم کی غربت ہے, شدید قسم کی, سارا علاقہ میں نے دیکھا ہے, غربت ہے, محرومی ہے, کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ پولیٹیکلی یہاں ایک بلوچ کے ذہن میں یہ بات آ کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم کو تو اس ملک میں کوئی کنسیڈر نہیں کرتا, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس ملک میں سب کچھ جو ہے جو بڑے لوگ ہیں وہی ہیں, یا بڑی جو قومیں ہیں وہ ہیں, بلوچ تو کچھ نہیں. اور یہ چیز بلوچ کو اب بے شک گولی مار دے, توپ سے اڑا دے, اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتا. مگر جب آپ اس کو دوسرے کے مقابلے میں یا اپنے مقابلے میں جب آپ اس کو سوشلی جب اگنور کرتے ہیں, اس کو کم دیتے ہیں, آپ اس کو توپ سے بے شک اڑا دیں, گولی مار دیں, وہ اتنا فیل نہیں کرتا جتنا اس چیز کو. اب میں ہوں بلوچ, میں اپنی بلوچ نیشن کو ان کی نفسیات سمجھتا ہوں. سب چیز برداشت کر سکتا ہے, یہ چیز قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو اپنے لیول میں کمپیریزن میں اپنے سے کم سے, یعنی آنر کوڈ جو ہے بالکل ہزاروں سال سے آنر کوڈ کے حوالے سے بلوچ جو ہے اس پہ سب سے جو پرائرٹی دیتا ہے وہ اسی کو دیتا ہے, اور کبھی کسی صورت میں اس میں کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن دو چیزیں ہمیشہ سے, ایک تو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے باہر جو ہے لوگ دیکھتے ہیں عدالتوں کی طرف, باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی سطح کا کوئی آئینی بحران بھی ہے یا نہیں. آئینی بحران تو ہے جی, وہ ہے کیا؟ جب بات ہی سیپریشن کی آ گئی, جب بات ہی آ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب آئین, پارلیمنٹ وغیرہ سب چیزیں بہت پیچھے رہ گئی. یہ تو میں آپ کو بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے بحیثیت اس ملک کے اور اس صوبے کے پالیٹکس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں. فرحان صاحب, میرے خیال میں اگر میں اپنے کو سیلف ریز والی بات تو اچھی نہیں لگتی نہ کرتا ہوں, بہت ہی زبردست قسم کا اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے اس میں میرا نام ہے. اس شہر میں, اس صوبے میں سب سے زیادہ جب بھی ضرورت ہوئی ہے ایز اے ایجیٹیشنل, اس میں یہ شہزادہ ذوالفقار بیٹھے ہیں. ہمیشہ میں نے یہ یہاں کی جتنی بھی سڑکیں ہیں, ایک سڑک کے اوپر میری ایجیٹیشنل اس کے حوالے سے میرے ان سڑکوں کے اوپر میرے قدموں کی چھاپ موجود ہے. نعرے لگائے, اسٹرگل کیے, سب کچھ کیا.
जितने भी जेल में पाकिस्तान में वो जेलम अडियाला कराची से लेके जितने भी जेलें हैं उसमें मैंने बड़ा वक्त गुजारा है। एक लाइफ का एक बहुत बड़ा एक अगर आप मैं कहूँ कि 7 साल की जिंदगी मैंने जेलों में गुजारी ऐसी जिसका मतलब मैं एक जेन्युइन उसमें जो है मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, न कोई पार्लियामेंट की हैसियत है, न कोई अदालतों की हैसियत है, न कुछ है। नहीं तो कोई तो होगा, कोई अभी कोई हाल बलूचिस्तान का आईनी डोमेन के अंदर या आइन से बाहर, तो आपको क्या लगता है क्या हल हो सकता है कि जब तक कि जो बैठे हुए जनरल, जब तक उनका ईगो कम्प्लेक्स, जब तक वो अपना ईगो कम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकलेंगे और इनके साथ बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। हम जितने भी लोग हैं यहाँ के, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल व्यू हैं, उन्होंने हमेशा इनको मशवरा दिया है जनरल्स को कि ये बलूच के मुकाबले में तुम्हारा ये ईगो कम्प्लेक्स किसी भी लिहाज से वो आपको फायदा नहीं देगा। अगर ईगो कम्प्लेक्स की बात है तो फिर आपके जनरल्स के ईगो कम्प्लेक्स में जो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत मिलिट्री पावर है, कोई इसमें शक नहीं। अगर ईगो कम्प्लेक्स की बात है, अगर ईगो की उसकी बात है, तो फिर मेरा ख्याल में बलूच ईगो के मुकाबले में जनरल्स की ईगो की कोई वैल्यू नहीं। देखिए जनरल्स की ताकत उनकी ईगो से ज्यादा बलोच की डिसअरे और डिसयूनिटी में है। आधे से ज्यादा सारे सरदार तो उनके साथ नहीं राणा साहब नहीं। आपने अभी अगर आप समझते हैं कि अब भी बलूचों में या बलूचिस्तान में डिसयूनिटी है, अगर अब भी आज भी आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में यूनिटी नहीं है, तो मुझे अफसोस है। इस वक्त मारंग के पीछे बलूचों को तो आप छोड़ दें, एक एक बलूच मोर और लेस छोटे मोटे 4-6 आदमी जो बुकटी साहब के सरफराज बुकटी के गिर पर घूमते फिरते हैं, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, या कुछ और छोटे सरदार मर्द उनकी बात नहीं करता हूँ। सारे के सारे बलोच मारंग के साथ हैं, सारे के सारे पठान मारंग के साथ है, सारे के सारे हजारे मारंग के साथ है, और बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है हमारे भाइयों के क्या भी लफ्ज़ आप उनको कहे, सेटलर कहें या पंजाबी स्पीकिंग कहें, पंजाब में भी स्पोर्ट है मारंग की, नहीं ये उर्दू स्पीकिंग कहें, जो ये सब की सब स्पोर्ट मारंग के साथ है। तो इस वक्त इस यहाँ कोई डिसयूनिटी की तो बात ही नहीं है। कंप्लीट आप समझ सकते हैं कि ये एक औरत है, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी कुछ नहीं। कहना चाह रहा हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद है, उसको लगता है कि उसके साथ जो सरदार है और पार्लियामेंट है, तो कोई हैसियत नहीं है, अब नहीं रही, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल कोई सवाल नहीं पैदा होता, कतई। एक बलूच सरदार जो भी है, व्हाटसोएवर व्हाट पोजीशन है उसकी, जितना वो बड़ा ट्राइब का हेड है, सबको एक सरदार ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो इस वक्त बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में, बलूचिस्तान के लोगों में उसकी कोई से मौजूद है, कतई नहीं है। ये जितने लोग जो इस वक्त पहाड़ों में, ये सब के सब यंगस्टर्स हैं, ये सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं हैं तो अच्छे खासे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब कुछ है। और इन एक आदमी पर भी किसी सरदार का एक जरा सा भी ना इन्फ्लुएंस है, ना उसको कंट्रोल कर सकते, कतई नहीं। एक ज़माना था कि नवाब खरबश मरी के हवाले से, अगर जब मरियों के इलाके में जो है एक चक वो थी, या बुकटियों के हवाले, या मैं आप कह सकते थे कि सरदार अताउल्लाह महंगल खैरबश नवाब खैरबश मरी नवाब बुकटी में, अब वो बात नहीं है। अब डॉक्टर आला नजर एक बिल्कुल एक सीधा साधा पॉलिटिकल वर्कर आप कह सकते हो उसको, ये बशीर ज़ैद जो है, हालांकि इत्तेफाक है। मैं कहता हूँ अभी मैं आपके सामने का कि बलूचिस्तान के सबसे ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं हूँ, मगर मैं आज तक डॉक्टर आला नजर से नहीं मिला, मैं बशीर ज़ैद को इस तरीके से नहीं जानता हूँ, मगर ये है कि हमारे सामने से ये लोग निकल कर आए और इस वक्त सारे इसमें चले। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, कॉम्प्रेस जमातें भी तो नाकाम हुई। नहीं, कम डॉक्टर मारंग उनके मुकाबले में उसने पॉलिटिक्स नहीं की है। नहीं, वो तो पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते, वो तो जाहिर है कि राइट्स के मूवमेंट है, लेकिन ये जो सूरत हाल बनी, ये लोग शायद मारंग के पीछे ना जाते अगर कॉम्प्रेस जमातें अपना किरदार अदा करते। नहीं देखें राना साहब, पॉलिटिक्स में स्ट्रगल्स में स्टेजेस होते हैं, ठीक है, स्टेजेस में हर आदमी ने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया, हर आदमी स्टेजेस। अब जैसे मैं यहाँ जब नैब की गवर्नमेंट को जो है टॉपल
टॉपल किया गया। उस वक्त मैं यहाँ पे नेशनल अवामी पार्टी का जो है प्रोविंस का उस पहले एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद आप समझे मैं उस वक्त जो रोल प्ले करना था वो मैंने और दूसरे लोगों ने किया। तो स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती गई। उसके बाद जो है वो मॉडर्न जो है आसमान से उतरी हुई कोई वो नहीं है। स्टेजेस जिस तरह ऊपर बिल्कुल वो स्टेजेस में आ गए। क्या अभी किसी एक बड़ी कॉम्प्रेस जमात की ज़रूरत है? क्योंकि पुरानी जमातें तो शायद वो अभी इरेलीवेंट होती जा रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। तो कोई इम्कान है, जैसे महारानी इस स्टेज से आई निकली, उसके सियासी एम्बिशन नहीं है, कि कोई कॉम्प्रेस जमात भी आ जाए जो बलोच कौमी तहरीक को रिप्रेजेंट करती हो? देखिए उस राना साहब उस लिहाज से तो कुछ नजर नहीं आता। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सरार अख्तर मैंगल की बात है, डॉक्टर मालिक, ये सारे पॉलिटिकल, डॉक्टर मालिक ज़्यादा पॉलिटिकल वर्क कर रहा है एज कम्पेयर टू ये हैं। मगर आप अगर इनको ये कहते हैं कि ये इसका उस जो मौजूदा स्ट्रगल है उसमें डॉक्टर मालिक का किसी भी लिहाज से तोड़ कर सकते हैं, उसके मुकाबले में ये मेरे ख्याल में तोड़ नहीं, सियासी फेस में तो चाहिए। सियासी फेज में भी मेरे ख्याल इस वक्त उस तरीके से लीडरशिप अभी मारंग उस तरीके से आप नहीं कह सकते वो, क्योंकि उस प्रोसेस से निकल कर नहीं आई है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का असर उस तरीके से मारंग किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर नहीं है। जिस तरह पॉलिटिक्स में एक लीडर को, एक स्टेट्समैन को, एक पॉलिटिशियन को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो सीखता चला जाता है, उसको पता होता है कि क्या करना। उस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारा उस तरीके से तो नहीं है, मगर चूंकि वो सारी लोगों की जो वो है उसको कमांड करती है, उस लिहाज से अभी जो कुछ भी है वो मारंग के हाथ में। क्योंकि मारंग से तो कॉम्प्रेस भी खौफजदा है और हुकूमत का भी सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं ये सियासी कुव्वत न बन नहीं। उस तरीके से तो अगर आप कहते हैं कि जैसे दूसरी पार्टी है कि उनकी कोई CEC है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या ये है, उस तरीके से डॉक्टर मारंग ये बलोच जो है यकजहती कमेटी है, उसका खाली एक नाम है, उसके अलावा नहीं है। मगर इस वक्त पॉलिटिकल एक लीडरशिप के हवाले से सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, इस मुल्क में नहीं, बल्कि दुनिया में उसका एक नाम है। अब मैं इस वक्त भी मैं ये कहता हूँ कि नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ जो भी अगर करेगा नुकसान उठाएगा। चूंकि आप ऑप्टिमिस्ट हैं, उम्मीद प्रस्त हैं, तो कोई बलूचिस्तान के हवाले से अच्छी खबर और वहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं गुफ्तगू। नहीं, जिन लोगों जो सामने लोग हैं ना वो बहुत छोटे लोग हैं। ये बहुत खूबसूरत मुल्क था, मैंने देखा है इसको, ये बिल्कुल मैं एक दिन एक वक्त मैंने इस सूबे में देखा है, इस मुल्क में देखा है। बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े कमाल के लोग थे। बादशाह खान के साथ मैं ऐसे छोटा जो जूनियर वर्कर था, बैठ के मैंने उसको देखा, उसकी पर्सनैलिटी को देखा, वली खान को देखा, नवाब खलिशवारी, नवाब बुट्टी को देखा, मीर साहब को देखा, बिजंजो साहब को, महमूद अली कसूरी साहब को देखा है, और इस मियाँ इफ्तिखारुद्दीन पैदा हुए, GM सैयद पैदा हुए, शेख मुजीब इसी मुल्क का पैदा हुए, बड़े मौलाना भाई सब लोग पैदा हुए। ये बहुत ज़रख़ीज़ सूबा है, मगर हमेशा अगर इसके मुकाबले में जब एस्टेब्लिशमेंट में आई, उसने समझा कि हमारे पास गन पावर है, लिहाजा हम इनके मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने पॉलिटिक्स को भी डिस्ट्रॉय किया और उसके साथ जो है खुद उनको भी कुछ नहीं मिला। इस वक्त इस मुल्क में हकीकत में अगर आप देखा जाए पॉलिटिक्स पावर अगर बात है तो वो डॉक्टर मारंग है, मंजूर पश्तीन है और इमरान खान है। ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर कोई इस मुल्क को बनाना चाहता है, अगर कोई इस मुल्क में अमन सुकून लाना चाहता है, तो ये तीनों पॉलिटिकल पावर्स है, इमरान खान है और मारंग है और मंजूर पश्तीन है। इनसे अगर बैठ के तो एक कोई राह निकाली जा सकती है। अगर आप इनके साथ इनको इग्नोर करेंगे, इनको नेगेट करने की कोशिश करेंगे, इनके साथ टकराएंगे, तो जो अपने को बहुत बड़ी ताकत समझता है उसके हिस्से में कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया अली अहमदपुर साहब, आपकी हस्बे साबिक बहुत ही खुली और ओपन गुफ्तगू के लिए।
اور ہم آپ کو جب بھی کوئٹہ آئے تو آپ کو تنگ کرتے رہیں نہیں 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 بہت شکریہ